So today we are going to begin with a new poem, that is A Thing of Beauty. I hope we have not done it earlier. करा तो नहीं हुआ पहले? No, ma'am. एक बारी क्रॉस चेक कर लो जसप्रीत, डिलीटेड तो नहीं है? डिलीटेड नहीं है वैसे, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, पर फिर भी एक बारी देख लो. No, ma'am. A roadside stand deleted है. All right. So we begin with the poem A Thing of Beauty. Gursharan Kaur begin the reading about the poet John Keats. कोई आपकी क्लास के अंदर विनोद नाम का बच्चा है किसी सेक्शन में? Yes, ma'am. है? No, ma'am. किसी की क्लास में विनोद है कोई बच्चा? No, ma'am. Begin करो बेटा गुरशरण. You were supposed to start the reading. Okay, ma'am. A thing of beauty is a joy forever. बच्चा Its बेटा. loveliness. No, stop. You are supposed to read about the poet John Keats. Okay, ma'am. John Keats was a British romantic poet. Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. जॉन Keats कीट्स जो है वो बहुत सारी एराज हैं, बहुत सारे जैसे आप हिंदी के अंदर भी पढ़ते होंगे कि ये पोएट इस वाले टाइम पीरियड को बिलोंग करते हैं. सो रोमांटिक पोएट जो है, रोमांस इज नॉट ओनली द लव बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल. Romance is the enlightenment, the elevation of the soul, the expression of nobility. In this poem, you are going to study about the nature, the love for nature, which is the most important thing in this world. So, John Keats was a British romantic poet. He was a surgeon by profession, but he decided to devote himself completely. Wholly is completely. He started writing poetry. Please continue. Keats' secret, his power to sway and delight the readers, lies primarily in the his poetry gift. under there is something very extraordinary. What is that extraordinary thing? The extraordinary thing is that Keats has the power to sway. Sway is move. Delight is give happiness to the reader. कैसे? Lies primarily क्योंकि वो वर्ल्ड को अलग अलग तरह से परसीव करते हैं, देखते हैं. और सिर्फ देख लेने भर से काम नहीं चलता. जैसे देखते हैं उसी तरह से वर्ड्स के अंदर उसको एक्सप्रेस कर पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है. मैं कोई चीज को देख रही हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, लेकिन मैं जैसे ऑब्जर्व कर रही हूँ वैसे का वैसे ही आपको मैं कन्वे कर सकूं. ऐसे वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोएट हैं जॉन कीट्स. प्लीज ये वाली कीट्स सीक्रेट वाली लाइन दोबारा रीड कर दो. Gursharan Kaur, are you there? जगदीप आप करो रीड आगे कीट्स सीक्रेट से. Keats' secret, his power to sway and delight the readers, lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language.
जो भी वो देखते हैं, जैसे वो महसूस करते हैं, जो उनके मूड्स होते हैं, जो उनकी चाहतें होती हैं, एस्पिरेशंस होती हैं, वो उन इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज ही इज एबल टू कन्वे, he is able to delight the reader, he is able to sway the reader. Whatever he is feeling, he will make you feel the same way. That is his success. The following is an excerpt from his poem Endymion, a poet romance. The poem is based on a Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Latmos, had a vision of Cynthia, the moon goddess. Okay, so what happened that the poem that we are going to study, it is a short part, a small part. किस चीज का small part है? Excerpt है. Excerpt is a small part. Endymion, a poetic romance, is the epic, is the big poem. So from that big poem, this is the small part that has been taken. जो ये Endymion है, ये Greek legend है. कोई भी चीज अपने आप में जो एग्जाम्पल होती है वो लेजेंड होती है. बहुत सारे दुनिया में लोग होते हैं जो अपने आप में एग्जाम्पल होते हैं, वो भी लेजेंड्स होते हैं. So this poem is a Greek legend. इसमें Endymion, a beautiful young shepherd and poet, he lived on Mount Latmos. उसको सपना आया, विजन आया सिंथिया का. सिंथिया, who Cynthia? Cynthia is the moon goddess. वो इतना ज्यादा एन्चैंट हो गया, अट्रैक्ट हो गया सिंथिया से, that he resolved कि मैं सिंथिया को फाइंड आउट करूंगा. और सिंथिया को फाइंड आउट करने के लिए he went from place to place. तो नेचर के साथ में he started relating. He started making a relation with nature which exists for everyone. एक और बहुत बड़ी बात मैं इस पोयम की जो बताना चाहती हूँ, जो भी दुनिया में कोई चीज ब्यूटीफुल है वो कभी नहीं मरती. फिजिकल ब्यूटी इज नो ब्यूटी एट ऑल. ब्यूटीफुल होते हैं एक्शंस, ब्यूटीफुल होती है सोल. सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. जो थिंग ब्यूटीफुल है वो हमेशा हमेशा के लिए इम्प्रिंटेड रहेगी. आज की डेट के अंदर भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होता है, तो 1947 के अंदर लता मंगेशकर ने जो सॉन्ग सिंग करा था, और जिस सॉन्ग के ऊपर महात्मा गांधी हैड, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैड शेड टीयर्स, टुडे आल्सो इट ब्रिंग्स टीयर्स इन आवर आईज. ए मेरे वतन के लोगों. सो दिस इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी. ये एक ऐसी चीज है जो अमिट है, जो कभी नहीं खत्म होएगी. जो ब्यूटी होती है वो नोबिलिटी होती है. ब्यूटी जो होती है वो एटर्नल होती है. ब्यूटी होती है जो वो परमानेंट होती है. जो भी कोई चीज दुनिया में टेम्परेरी है वो ब्यूटी नहीं है, वो तो सिर्फ इल्यूजन है, वो सिर्फ भटकना है. ओके, प्लीज ये लास्ट लाइन भी पढ़ दो वो बच्चा. यस जगदीप. I'm sorry. Wandered away through the forest and down under the sea. So the enchanted is attracted, youth is Endymion, poet. So he wandered, वो भटक गया. कहाँ पर भटक गया? ढूंढने के लिए, सीख करने के लिए. किसको? सिंथिया को. थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी. नेक्स्ट नाउ जसप्रीत, 2 लाइन्स रीड करनी है हर बच्चे ने. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness. जो भी कोई दुनिया में चीज ब्यूटीफुल है वो हमेशा के लिए जॉय है. इट इज अ जॉय टुडे, इट इज अ जॉय फॉरएवर. हमेशा के लिए वो जॉय है. उसकी लवलीनेस टाइम निकलते निकलते बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है. ऐसा कभी नहीं होएगा कि वो चीज जो है वो मिट जाएगी, नथिंगनेस के अंदर वो चली जाएगी. रादर क्या होएगा?
जब भी दुनिया के अंदर हम डिसअपॉइंटेड होएंगे, हम परेशान होएंगे, डिसग्रंटल्ड होएंगे, वो जो थिंग ऑफ ब्यूटी होएगी वो हमारे मन को शांति देगी, वो हमारे को हिम्मत देगी कि हम फिर से अपनी एफर्ट को रिजुविनेट होकर फिर से हम अपनी जिंदगी को चला सके. नेक्स्ट, इशिता, अपने आप ही एक एक नेक्स्ट नेक्स्ट करके पढ़ते जाओ बेटा. Pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. ओके, बावर, बावर इज, अंडरलाइन करके वर्ड्स के मीनिंग्स लिखो, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के अंदर वर्ड का मीनिंग डिफरेंट हो सकता है. बावर इज अ शेडी प्लेस. दुनिया की डेजर्ट के अंदर चलते हैं हम. क्यों हो जाता है दुनिया का डेजर्ट? क्योंकि लोग जो है वो रुथलेस होते हैं, लोग हमारे को डिसग्रंटल कर देते हैं. वी आर वेरी वेरी अपसेट बाय द डिसअपॉइंटमेंट्स दैट वी हैव टू फोर्सिबली अंडरगो. तो क्या होता है, वो थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे लिए क्या करती है? शेडी प्लेस बना देती है. कैसे, कैसा वाला शेडी प्लेस? क्वाइट शेडी प्लेस फॉर अस. और उसको याद करके हम सुख की नींद सो सकते हैं. ऐसी वाली स्वीट ड्रीम्स वाली, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. अगर हम सही से सोएंगे तो क्या होएंगे? हेल्दी होएंगे. और क्या होएगा? जो इंसान हेल्दी होएगा उसकी ब्रीदिंग कैसी होएगी? क्वाइट होएगी. जो भी कोई सबसे पहले जब डॉक्टर चेक करता है तो क्या चेक करता है? ब्रीदिंग चेक करता है किसी भी इंसान की, राइट? तो क्वाइट हो जाएगी ब्रीदिंग. कैसे हो जाएगी क्वाइट? अ थिंग ऑफ ब्यूटी का सहारा लेकर, लाइफ के डेजर्ट को क्रॉस करके, डिसअपॉइंटमेंट्स को हैंडल करके हम अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स के अंदर सब मर्ज नहीं हो जाएंगे. हम उसको पकड़ लेंगे थिंग ऑफ ब्यूटी को, और क्या करेंगे? वी शैल बी एबल टू हैव अ स्लीप ऑफ स्वीट ड्रीम्स. खुशबू. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth. Therefore, इसलिए, on every morrow, morrow is morning, क्या हर सुबह हम रीदिंग, देखो बच्चों, रीद होती है ऐसे 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 राउंड राउंड वाला. किसी का फ्यूनरल होता है तो उसके डेड बॉडी के ऊपर ऐसे राउंड वाला बुके रखते हैं. अगर तुम मेरी क्लास के अंदर होते, मैं तुम्हें बोर्ड पे बना के रीद दिखाती. जो हमारा और नेचर का रिलेशन है वो कैसा वाला रिलेशन है? रीद के जैसा वाला रिलेशन है. रीदिंग. क्या हम हर सुबह, हर रोज अपना और नेचर का रिलेशन फिर से बना रहे हैं? क्योंकि हमारा और नेचर का रिलेशन कैसा है? फ्लावरी. फ्लावरी को अंडरलाइन करके लिखो. डेलिकेट, बैंड, नैरो स्ट्रिप, बाइंड, अटैच. हमारा और नेचर का रिलेशन, जो हम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, वो कैसे अटैच होते हैं? हमारा बहुत ही डेलिकेट रिलेशन है, फ्लावरी रिलेशन है. अर्थ क्या है? नेचर है. अर्शदीप. यस बेटा. Ma'am, what is breathing? व्हाट इज Breathing? रीदिंग? इज a round circular movement. कैन बी अ रीद बुके हो सकता है, जो कि हमने किसके ऊपर रखा हुआ होएगा? डेड बॉडी के ऊपर भी किसी किसी टाइम आपने देखा होएगा. सोल्जर्स के लिए स्पेशली यूज करा जाता है. कोई बच्चा जशन कटवाल आपके क्लास के अंदर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So, therefore, on every morrow, are we reading a flowery band to bind us to the earth? क्या कोई फ्लावरी बैंड, क्या कोई वो डेलिकेट सा रिलेशन, क्या हम हर रोज रिवाइव कर रहे हैं? क्योंकि बहुत डेलिकेट है, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है. बैलेंसिंग के लिए हर रोज क्या हम अपना और नेचर का रिलेशन, जो हमारी और नेचर की कैसी है? नैरो स्ट्रिप है.
क्या हम अपने को उसके साथ अटैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्योंकि दुनिया में कैसी दुनिया है ये? दुनिया के अंदर बहुत स्पाइट है. स्पाइट को अंडरलाइन करके लिखो. इल विल, बहुत सारी बुरी भावनाएं हैं, बहुत सारे लोगों के मनों के अंदर नफरत है, हेट्रेड है, नेगेटिविटी है. इन सब की वजह से, स्पाइट की वजह से, इल विल की वजह से क्या हो जाता है? डेस्पोंडेंस. डेस्पोंडेंस को अंडरलाइन करके लिखो. डिसअपॉइंटमेंट, इनह्यूमैनिटी, क्रूएलिटी. इस दुनिया के अंदर क्रूएलिटी की कोई डर्थ नहीं है, कोई कमी नहीं है. डर्थ, लैक. ये वर्ल्ड लैक नहीं करता इनह्यूमैनिटी को, इसमें बहुत इनह्यूमैनिटी है. फिर हम जिंदगी कैसे चलाते हैं? अगर इतनी डिसअपॉइंटमेंट है, इतनी इल विल है, स्पाइट है, इतना ज्यादा इनह्यूमैनिटी है, तो लाइफ कैसे चलती है हमारी? हमारी लाइफ चलती है नेचर को देखकर. कैसी है नेचर? नोबल. हमेशा देती रहती है. ये नहीं कहती कि मैंने तुम्हारे को इतने अमरूद दिए हैं, इतने किलो, तुम मुझे इतने पैसे दो. ये नहीं कहता फूल कि मैंने तुम्हारे को इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस दी है, मुझे इसका किराया दो. बर्ड ये नहीं कहता कि देखो मैं तुम्हारे को अपनी फ्लाइट से इंस्पायर कर रहा हूं और तुम मुझे बताओ इसके बदले में क्या दोगे. सन तुमसे आके किराया नहीं मांगता. अगर किराया मांगेगा ना सन, तो हम दे ही नहीं सकेंगे, एक दिन भी नहीं दे सकेंगे हम. तो नोबल है नेचर. क्यों है नोबल? क्योंकि सेल्फलेस है, क्योंकि परमानेंट थिंग ऑफ ब्यूटी है. नेचर को देखकर हमें सहारा मिलता है, नेचर को देखकर हम अपनी जिंदगी चलाते हैं. नोबल नेचर. फिगर ऑफ स्पीच, पोइटिक डिवाइस, एक ही बात होती है. किसी ने एग्जाम में पूछा था मुझे मैसेज करके. नोबल नेचर, नोबल नेचर इज एलिटरेशन. न साउंड रिपीट हुई है. नोबल नेचर हमें कब हेल्प करती है? जब हमारे डेज ग्लूमी हो जाते हैं. ग्लूमी, डार्क हो जाते हैं डेज, सैड हो जाते हैं डेज. बहुत दुख जब हमें मिलता है, बहुत हमें तकलीफ होती है जब हमारे को स्पाइट को, डेस्पोंडेंस को, इनह्यूमैनिटी को फेस करना पड़ता है. तो हम कैसे हो जाते हैं? हम ग्लूमी हो जाते हैं. देन हु सपोर्ट्स अस? नेचर सपोर्ट्स अस. रशलीन को रीड करना है आगे का. रशलीन, गुरशरण, दिवजोत. दिवजोत वीडियो क्यों ऑफ करी हुई है बेटा? मैम मेरा नेट इशू बहुत हो रहा है तो मैं रीड नहीं कर सकती मैम. पहले भी कर रही थी तो मैं एग्जिट हो गई थी एकदम से. कोई बात नहीं. दिवजोत, Yes, ma'am. can you read and can you switch on your video also? Yes, ma'am. अब मत ऑफ करना. जो बात नहीं मानते वो अच्छे बच्चे नहीं होते. नोटिंग डाउन एवरीथिंग. मैम मेरे को पेज नंबर बता दो, मुझे पेज नंबर नहीं पता. अब इतनी देर से क्या पढ़ रहे थे मेरा बच्चा? 98 पेज. मैम वो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया बीच में. ये हैंड रेज करके डिस्टर्ब करना चाहिए ना. आपको क्या पता लगेगा मैंने जो इतना सारा पढ़ा दिया? यहां से पढ़ो पेज 98. Therefore on every morrow से पढ़ना शुरू करो. अब मैं रीड करूं तब तक. प्लीज वंशिका, आई विल बी ग्रेटफुल. आप ढूंढो तब तक वंशिका रीड कर रही है ताकि टाइम ना निकले. हाँ जी बेटे. Therefore, on start करूं. यस बेटा. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days,
of all the unhealthy and or in darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Okay, thank you, Vanchika. If I will be able to see you, I will be happy. Anyways, आप यहाँ से इसने रीड करा है, इसके बाद में दिवजोत कैन रीड, जो ये वाला रीड करा है ऑन एवरी मॉरो. क्या हर सुबह हम अपना और नेचर का रिलेशन वीव कर रहे हैं, बुन रहे हैं, रीड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा और नेचर का रिलेशन बहुत डेलिकेट है, जो कि हमारे को अटैच करता है अर्थ के साथ. दुनिया में स्पाइट है, डेस्पोडेंस है, इनह्यूमैनिटी है, ग्लूमी डेज हो जाते हैं, अनहेल्दी और ओवर डार्कन्ड वेज हो जाते हैं. लाइफ ऐसे हो जाती है कि लगता है कि इसके बाद में अब तो कभी कुछ ठीक होएगा ही नहीं. स्टेट ऑफ कंप्लीट नेगेटिविटी, होपलेसनेस आ जाती है. तो फिर हमारा रास्ता हम कैसे जिंदगी का चलाते हैं? हाउ डू वी सर्च अवर वे? यस, इतना सब होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल, कोई एक शेप ऑफ ब्यूटी है, कोई थिंग ऑफ ब्यूटी है. हर एक की थिंग ऑफ ब्यूटी अलग अलग हो सकती है. वो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या करती है? जो हमारी स्पिरिट्स हैं, हमारी सोल्स हैं, जो डार्क हो जाती हैं, उनके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है, पैल. उस पैल को रिमूव कर देती है वो थिंग ऑफ ब्यूटी. हमें इंस्पायर करती है कि क्या करो, कि नेगेटिविटी के अंदर मत जियो. लाइफ विल, कभी भी कोई भी दुनिया में चीज हमेशा के लिए नहीं रहती. अगर नेगेटिव नहीं, अगर पॉजिटिव नहीं रहा तो नेगेटिव भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा. ऐसा कैसे हो सकता है कि नेगेटिव हमेशा के लिए रुक जाएगा? पर फॉर दैट रीजन क्या होने की जरूरत है? इंसान का बहुत सच्चा पक्का रिश्ता किसके साथ होने की जरूरत है? नेचर के साथ, जो कि परमानेंट थिंग ऑफ ब्यूटी है. दिवजोत. मैम लाइन बताना कौन? Such the sun, such the sun. Second last line. From the dark spirit से मैम. Such the sun, such the sun. Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady bond. Okay, shady है, shady. देखो, सुनो ध्यान से. वो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? मन में क्वेश्चन आता है कि थिंग ऑफ ब्यूटी की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है थिंग ऑफ ब्यूटी? कौन सी थिंग ऑफ ब्यूटी? जैसे कि सन, जैसे कि मून, जैसे कि ओल्ड एंड यंग ट्रीज, वो सब क्या कर रहे हैं? स्प्राउट कर रहे हैं. स्प्राउट करने को लिखो प्रोड्यूस करना. क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? हमारे लिए शेडी ब्लेसिंग. बून इज ब्लेसिंग. शेडी, ऐसी वाली दुनिया की डेजर्ट के अंदर, ताकि हम जिंदगी अच्छे से चला सकें. अगर सन रोज निकलता है, अगर मून रोज आता है, अगर ट्रीज हैं ओल्ड एंड यंग, वो जो अपनी शेडी बून हमें दे रहे हैं, किसको देते हैं? लेकिन नेचर किसको हमेशा हेल्प करती है? सिंपल शीप को. सिंपल शीप को अंडरलाइन करके लिखो, इनोसेंट ह्यूमन बीइंग्स. मेटाफर है, मान ही लिया गया जो सिंपल शीप है वो इनोसेंट ह्यूमन बीइंग्स हैं. जो भी लोग तेज तरार, कनिंग, चालाक होते हैं, कुदरत उनको हेल्प नहीं करती. इंसान को, जो इंसान मन से प्योर है, जो इंसान के मन के अंदर नोबिलिटी है, वही नोबल होएगा, वही नोबिलिटी के साथ में कनेक्ट कर सकेगा. अच्छाई होने की जरूरत है, तभी अच्छाई से अच्छी चीज और आगे मिलती है. It's a very complex system of nature. If you are good, you will get goodness. If you are not good, you will, whatever you are going to get that only. Right? So, John Keats says, such is the sun, such is the moon, such are the trees, which are old and young. They are sprouting, they are producing a shady blessing for simple sheep. बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल दिया है. डेफोडिल्स एक फूल है, एक फ्लावर है. क्लास 12th. डेफोडिल्स जिस जगह में परमात्मा खिलाता है, ग्रो करता है, वहां पर पहले से पानी का झरना होता है. क्लियर रिल पहले होता है, डेफोडिल्स को बाद में वहां पे भेजा जाता है.
नेचर का ये अरेंजमेंट है। नेचर को ये मालूम है कि डेफोडिल्स इतना डेलिकेट फ्लावर है, उसका सर्वाइवल तभी हो पाएगा अगर पानी वहां पर होएगा। तो डेफोडिल्स के सर्वाइवल के लिए, उसके लिए कूलिंग कॉवर्ट क्रिएट करने के लिए परमात्मा क्या करता है, ईश्वर क्या करता है, ऐसी जगह पे उसको ग्रो करता है जहां पे पानी के झरने ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। यस, गुरबानी पढ़ते हो तुम सारे के सारे, रोज पढ़ते हो ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कि सैल पत्थर में जंतु पाए ताका रिजक आगे कर तरया, कि जो उसने सैल में पत्थर में भी जंतु उपजाए है ना, उनका भी उसने रिजक उनके लिए रखा हुआ है, उपजाया हुआ है। तो विश्वास, कन्विक्शन, रिलेशन, पॉजिटिविटी, ये सारी चीजें हैं जिनसे कि क्या करा जाएगा, जिंदगी जो है वो नाइसली आगे आगे चल सकेगी। दिवजोत के बाद बच्चा कौन सा रीड करना चाहता है? जो भी करेगा वो वीडियो ऑन करेगा, नहीं तो जिन्होंने वीडियो ऑन करी है वो दोबारा रीड करेंगे। बताओ। वंशिका को मैंने बिना वीडियो ऑन करे चांस दे दिया था, फिर भी वंशिका ने नहीं ऑन करी वीडियो। राजवीर आप करोगे? जसप्रीत रीड कर बेटा। And such are daffodils, with the green world they live in. डेफोडिल्स कहाँ पे रहते हैं? जंगल में, ग्रीन वर्ल्ड के अंदर। दे पर्सोनिफाई कर दिया, डेफोडिल्स को एक पर्सन मानकर डिस्क्राइब कर दिया। And clear rills that for themselves a cooling covert make gains the hot season. सीजन, ओके। क्लियर रिल्स, रिल्स को अंडरलाइन करके लिखो। स्मॉल स्ट्रीम्स कैसे है? पानी के झरने हैं जिनसे क्या हो जाता है, कूलिंग कवर्ट, कवरिंग शेडी एरिया। कवरिंग शेडी एरिया किस क्यों चाहिए? ताकि अगेंस्ट द हॉट सीजन सेव कर सके, फाइट कर सके, सरवाइव कर सके। किसको चाहिए? डेफोडिल्स को चाहिए। खुशबू? Yes. That for them and clear rills, that for themselves a cooling covert make, against the hot sea, the mid-forest break. मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक को अंडरलाइन करके लिखो। थॉर्नी बुशेस, थिकेट्स, जंगल के बीचों बीच बहुत सारे बहुत ब्यूटीफुल मस्क रोजेस ब्लूम कर रहे हैं, खिल रहे हैं। उन मस्क रोजेस के अंदर बहुत सारे थॉर्न्स लगे हुए हैं। दो रीजंस की वजह से थॉर्न्स लगे हुए हैं। वन, उनकी प्रोटेक्शन, सेकंड, उनका फूड स्टोर्ड है उन थॉर्न्स के अंदर। कुदरत ने उनको इस तरीके से जंगल के बीचों बीच क्रिएट करा है जहां पे वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं खुद। कैसे कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ दी मिड फॉरेस्ट ब्रेक के अंदर झाड़ियां हैं, बुशेस हैं, थिकेट्स हैं। उन थिकेट्स के बीच में मस्क रोजेस ब्लूम कर रहे हैं। इशिता आगे। Rich with a sprinkling of fair musk blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read. So, ऐसा ग्रैंडियोर, ऐसी स्प्लेंडिडनेस हमने, ऐसा मेजेस्टिक एनवायरनमेंट हमने इमेजिन करा है कि जब दुनिया खत्म हो जाएगी, जो लोग जो है जिन्होंने नेक काम करे होंगे, जो माइटी डेड है, डेड होकर भी, ऑक्सीमोरोन यूज करा हुआ है, पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच। माइटी डेड, डेड हो गए लेकिन इतने पावरफुल हैं कि आज जीते हुए लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हैं। भगत सिंह, ओके, शहीद उधम सिंह। माइटी डेड हमने इमेजिन करा है कि जो लोग जिन्होंने अपनी नोबल जिंदगी जी है वो कहाँ जाते हैं? वो स्वर्ग में जाते हैं।
डूम के बाद, रूइन होने के बाद, डेथ के बाद, ऐसा हमने इमेजिन करा है। हम उनकी बहुत अच्छी वाली स्टोरीज को सुनते हैं और पढ़ते हैं कि जो लोगों ने नेक काम करे हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो हेवन के अंदर चले जाते हैं। जगदीप, आगे वाली 2 लाइन्स। And endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink. ऐसा माना जाता है कि वो जो कुदरत ने हेवन क्रिएट करा हुआ है वो कितना खूबसूरत है, कितना मेजेस्टिक है, कितना ग्रैंडियोर है, जिसमें मस्क रोजेस खिल रहे हैं, जिसमें डेफोडिल्स खिल रहे हैं। ऐसे वाली स्टोरीज को हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं। ऐसे वाली स्टोरीज जो होती हैं वो हमारे लिए एंडलेस फाउंटेन बन जाता है इमॉर्टल ड्रिंक का। इमॉर्टल ड्रिंक इज नेक्टर, जो कि पोर करा जा रहा है फ्रॉम हेवन। जो जिनकी स्टोरीज सुनकर हम बड़े होते हैं, जिनकी स्टोरीज जो होती हैं वो हमारे लिए गाइड बन जाती हैं, जिनकी गाइडलाइन लेकर, जिनका हाथ पकड़कर हम क्या करते हैं, हम अपनी जिंदगी के पैरामीटर्स क्रिएट करते हैं। वो वाली स्टोरीज हमारे ऊपर पोर कर रही है नेचर। जो इतने लोगों ने नेक काम करे कि वो मरकर भी नहीं मरे, माइटी डेड है, आज भी वो हमारे मन के अंदर राज कर रहे हैं, आज भी वो लोग हमारे मन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। This is last 2 lines have got 2 meanings. One meaning I have told you. This one meaning is उन लोगों की बारे में बात करी गई है जिन्होंने नोबल डीड्स करी और जो माइटी डेड हो गए, मतलब जो डेड होकर भी डेड नहीं हुए, जो डेड होकर भी दुनिया के अंदर थिंग ऑफ ब्यूटी बन गए हैं, जो डेड होकर भी लोगों को सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन दे रहे हैं। दैट इज वन मीनिंग। सेकंड मीनिंग नाउ, सेकंड मीनिंग इज नेचर जो है वो परमानेंट थिंग ऑफ ब्यूटी है। हर वक्त नेचर हमारे ऊपर क्या करती जा रही है, हमारे ऊपर शावर करती जा रही है अपनी ब्लेसिंग। हर वक्त हमारे को इंस्पायर करती जा रही है अपनी नोबिलिटी से। इट इज अ परमानेंट, इट इज अ कांस्टेंट एटर्नल थिंग ऑफ ब्यूटी। सिर्फ जरूरत क्या है, हमें अपना और नेचर का बहुत ही फ्रेजाइल रिलेशन है, हमें सिर्फ उसको क्रिएट करने की जरूरत है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. I am waiting, just go through it. Anything which is unclear, I am ready to once again explain it to you. So, मिड फॉरेस्ट के अंदर झाड़ियां लगी हुई हैं, उन झाड़ियों के अंदर रिच, बिल्कुल बहुत खूबसूरत मस्क रोजेस खिले हुए हैं। और वो कितना सुंदर है, जैसा कि हमने इमेजिन करा कि जब डूम्स डे होएगा, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो अच्छे लोग हैं वो हेवन में जाएंगे, जो बुरे लोग हैं वो हेल में जाएंगे, वो वाले टाइम के अंदर में जो ग्रैंडियोर होएगा हेवन का, वो कितना सुंदर होएगा, जैसे कि मस्क रोजेस खिले हुए हैं, जैसे कि डेफोडिल्स खिले हुए हैं। ग्रैंडियोर, मेजेस्टिक, स्प्लेंडिडनेस। और पूछो जो जिसको नहीं समझ में आया। Ma'am, please explain cooling covert. Cooling covert is personification here. Cooling covert is alliteration also. It is the covering, shady area which has been created for giving comfort to the delicate daffodils. Right, Ishita? बहुत ही कंफर्टेबली इसको Yes, फिर से रीड कर लेना। आपका कल एग्जाम नहीं है, कल मॉर्निंग में होगी आपके साथ मेरी क्लास। मैं इसको फिर से रिवाइज भी करवाऊंगी और इसके क्वेश्चंस करके रखना। आई शैल डिस्कस दैट। अपने क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल रेडी रहना, सो दैट वी आर एबल टू पार्टिसिपेट। राइट बच्चास, प्लीज टेक केयर, डू वेल, बाय बाय। Bye, ma'am. Bye, ma'am.